Today, in the subject of the manufacturing topology, we are continuing for the unit 2. In the case of the unit 2, we will study limits, fits, and the tolerances and the gauging. What are the limits, fits, and the tolerances? Why study limits and fits? The answer of this question is given here. Exact size is impossible to achieve. You cannot achieve the exact size. Exact size, कोई भी डायमेंशन आपको दिया हुआ है ड्राइंग में, वो अचीव करना आपको इम्पॉसिबल है. थोड़ा सा आप 50 का बनाना चाह रहे, ये फिगर में आपको यहां पे दिया हुआ है. डायमीटर 40 का आप बनाना चाह रहे हैं, आपको 40 का नहीं बनेगा, आपको प्लस माइनस आपको देना पड़ेगा, उसी में आपको बनेगा. ये आपको कारण है. Establish boundary between which deviation from the perfect form is allowed, but still the design intent is fulfilled. Enable interchangeability of the components during the assembly. This is the reason why we study for the limits and the fits. The definition of the limit: the maximum and minimum permissible sizes within which the actual size of component lies are called limits. The maximum and minimum permissible sizes, maximum और minimum का जो permissible sizes है, उसको limits कहते हैं. Tolerance: it is impossible to make anything of the exact size. Exact size आपको, जैसे मैंने आपको कहा, ये बनाना आपको इम्पॉसिबल है. अगर 40 डायमीटर का ये बनाना चाह रहे हैं तो ये 40 डायमीटर का आपको कभी नहीं बनेगा, आपको प्लस माइनस आपको देना पड़ेगा. Therefore, it is essential to allow a definite tolerance or permissible variation on every specified dimension. This is the tolerance. What tolerance are specified? Variation in property of the material being machined introduce errors. The production machines themselves may have some inherent inaccuracy. It is impossible for an operator to make a perfect setting. While setting up the tools and workpiece on the machine, some errors are likely to creep in. This is the reason the tolerances are specified. Consider the dimension shown in the figure. When trying to achieve a diameter of the 40 mm, a variation of the 0.05 mm on either side may result. If the shaft is satisfactory, if its diameter lies between the 40.05 mm and 39.9 mm, the dimension of the 40.05 mm is known as the upper limit, and the dimension of the 39.95 mm is known as the lower limit of the size. Tolerance is the example of the difference between the 14.05 minus 39.95. This is the 0.10. This is the tolerance. Hence, the tolerance is always a positive quantitative number. Tolerance आपको यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा दिया गया है. कोई भी एग्जैक्ट डायमेंशन का आप पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री में. 40 mm का बनाना चाह रहे हैं, वो 40 mm का नहीं बनेगा, वो आपको प्लस माइनस आपको देना पड़ेगा, प्लस माइनस आपको देना पड़ेगा. और टॉलरेंस आपको यहां पर आपको दिया हुआ है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट आपको करना होगा, है ना. तो टॉलरेंस आपको यहां पर क्लियर हो गया. व्हाट इज द टॉलरेंस? टॉलरेंस का आपको यही मतलब है कि आप थोड़ा सा डायमेंशन को मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट आप उसको दीजिए. यूनिलैटरल टॉलरेंस: टॉलरेंस ऑन अ डायमेंशन में आइदर यूनिलैटरल और द बायलैटरल. आप उसमें जो टॉलरेंस होता है आपको यूनिलैटरल हो सकता है और बायलैटरल हो सकता है. When the two limits of the dimension are only one side of the nominal size, the tolerance are said to be unilateral. For unilateral tolerances, a case may occur when one of the limits coincide with the basic size. Basic size is the 25.00 mm. Upper limit is this one, lower limit is this one, tolerance is this one. है ना. यहाँ पर आपको
दिखाया गया है, बेसिक साइज आपको दिखाया गया है, लोअर लिमिट दिखाया गया है, अपर लिमिट आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको 25 mm का आपको यहाँ पर आपको अपर लिमिट आपको दिखाया गया, लोअर लिमिट दिखाया गया, टॉलरेंस आपको दिखाया गया है ना। दिस इज द यूनिलैटरल टॉलरेंस, है ना। बेसिक साइज आपको यहां पर आपको दिखाया गया, अपर लिमिट आपको दिखाया गया, लोअर लिमिट आपको यहां पर दिखाया गया, टॉलरेंस आपको 0.10, ये आपको दिस इज द यूनिलैटरल टॉलरेंस, दिस इज द यूनिलैटरल टॉलरेंस। ये इसे आप यूनिलैटरल टॉलरेंस कहते हैं, ये आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस व्हेन द टू लिमिट्स डायमेंशन आर अबव एंड बिलो नॉमिनल साइज, the tolerance are said to be bilateral. Unilateral tolerance are preferred over the bilateral tolerance because the operator can machine to the upper limit of the shaft, having the whole tolerance left for the machining avoid the rejection of the part. है ना, ये आपको टॉलरेंस एक्यूमुलेशन यहां पर आपको दिखाया गया है। यूनिलैटरल टॉलरेंस, बायलैटरल टॉलरेंस, ये बेसिक साइज आपको दिखाया गया है, और ये आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस आपको दिखाया गया है। अगर एक ही साइड में आपको दिया जाता है, एक ही साइड में आपको दिया जाता है, बायलैटरल टॉलरेंस का मतलब है दोनों साइड में आपको दिया जाता है। तो ये आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस के बारे में आपको बताया जाएगा। टॉलरेंस एक्यूमुलेशन, टॉलरेंस एक्यूमुलेशन का मतलब है जितने भी तरह के टॉलरेंस हैं सब पॉजिटिव और निगेटिव को आप जोड़ दिया जाए। L1, L2, L3 है, उसको L कर दीजिए, प्लस A प्लस C प्लस E है, ये इसको जोड़ दीजिए, माइनस B माइनस D माइनस F है, इसको जोड़ दीजिए। ये आपको टॉलरेंस एक्यूमुलेशन है और टॉलरेंस बिल्डअप है ना। टॉलरेंस एक्यूमुलेशन है और द टॉलरेंस बिल्डअप है। This is the tolerance calculation. If a part compromises of the several steps, each step having some tolerance spread over its length, then the overall tolerance of the complete length will be the sum of the tolerances of the individual length as given in the figure A. The effect of the accumulation of tolerance can be minimized by adapting the progressive dimension from a common datum as shown in the figure P. है ना, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। ये टॉलरेंस एक्यूमुलेशन यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। दो यहां पर आपको दिया हुआ है, तो ए जो है 65 हो गया, ए कितना होगा ये यहां पर आपको निकाला हुआ है। 65 प्लस माइनस 15 माइनस 40 प्लस माइनस 0.115, ये आपको 25 प्लस माइनस 0.3 हो गया। ए मैक्सिमम हो गया 25.3 एंड ए मिनिमम हो गया 24.7। यहां पर ए मैक्सिमम, ए मिनिमम ये आपको निकाला हुआ है। इस फिगर में ए कितना होगा उसके बारे में आपको बताया गया है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ये बी लेंथ आपको कितना होगा, यहां पर आपको जोड़ा गया है 25 प्लस माइनस 0.5, 35 प्लस 0.88 प्लस 20.0 प्लस माइनस 0.58, ये आपको 80 प्लस माइनस 128 हो गया। बी मैक्सिमम हो गया 81.8, बी मिनिमम हो गया 78.2। ये आपको टॉलरेंस एक्यूमुलेशन है। ये आपको टॉलरेंस एक्यूमुलेशन यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया गया था। ये आपको टॉलरेंस एक्यूमुलेशन है और टॉलरेंस बिल्डअप है, जो आपको फिगर में आसानी से समझ में आ रहा है ना। कंपाउंड टॉलरेंस, a compound tolerance is one which is derived from considering the effect of the tolerance on more than one dimension, है ना। The tolerance on the dimension L is dependent on the tolerance of the D, H and theta. The dimension L will be maximum when the base dimension is the D plus A and the angle theta plus A, and the vertical dimension H minus D. The dimension L will be minimum when the base dimension is D minus B, the angle is theta minus B, and the vertical dimension is the H plus C. ये L का जो डायमेंशन है वो आपको D पे डिपेंड है, H पे डिपेंड है और थीटा पे डिपेंड है ना। इसको बोलते हैं कंपाउंड टॉलरेंस। कंपाउंड टॉलरेंस in which it is derived from considering the effect of the tolerance on more than one dimension.
अगर एक डायमेंशन से ज्यादा पे आपको डिपेंड करता है तो उसको कंपाउंड टॉलरेंस बोलते हैं। ये आपको कंपाउंड टॉलरेंस है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। लिमिट्स of size and the tolerance, terminology of the limit system. Limits of the size, the two extreme permissible sizes of the component between which the actual size should lie, including the maximum and minimum size of the component. Nominal size, it is the size of the component by which it is referred to as a matter of the convenience. Nominal size. Basic size, it is the size of the part in relation to which all limits of the variation are determined. ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। बेसिक साइज, इट इज द साइज ऑफ ए पार्ट इन रिलेशन टू विच ऑल लिमिट्स ऑफ द वेरिएशन आर डिटरमाइंड। जीरो लाइन, इट इज द लाइन विथ रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ टॉलरेंस जोन आर डिटरमाइंड। तो यहां पर आपको डिफिनेशंस दिया गया है। जो पार्ट आपको यूज होता है टॉलरेंसेस में, उसका डिफिनेशन आपको यहां पे दिया गया है। डेविएशन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए लिमिट ऑफ साइज एंड द कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज। अपर डेविएशन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द कोरस्पोंडिंग बेसिक साइज, and it is denoted by letter ES for a whole and ES for a shaft. Lower deviation, it is the algebraic difference between the minimum limit of the size and the corresponding basic size. It is denoted by letter EI for a whole and EI for a shaft. Fundamental deviation, it is the deviation either upper or lower deviation which is nearest to the zero line for the either whole or a shaft. It fixes the position of the tolerance zone in relation to the zero line. Allowance, it is the international difference between the whole dimension and the soft dimension for any type of the fit. Size of the tolerance, it is the difference between the maximum and minimum limit of the size. System of the fit. System of the fit. A fit is an assembly condition between whole and shaft. A feature engulfing a component is a whole. A feature being engulfed by a component is a shaft. है ना? ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। Clearance fit. In this type of the fit, the largest permitted shaft diameter is less than the smallest hole diameter, so that the shaft can rotate or slide according to the purpose of the assembly. है ना? यहां पर आपको टॉलरेंस जोन आपको दिखाया हुआ है। मैक्सिमम सी, अपर लिमिट ऑफ ए होल, लोअर लिमिट ऑफ ए शाफ्ट। मिनिमम सी, लोअर लिमिट ऑफ ए होल, अपर लिमिट ऑफ ए शाफ्ट। ये आपको मैक्सिमम सी, मिनिमम सी आपको दिखाया गया है, ये शाफ्ट दिखाया गया है, ये होल आपको दिखाया गया है। टॉलरेंस जोन नेवर मिट, है ना। इंटरफेरेंस फिट, यहां पर एग्जाम्पल आपको इंटरफेरेंस फिट का आपको दिखाया गया है। जब जो है it is defined as a fit established between a negative clearance exists between the sizes of the hole and the shaft. In this type of the fit, the minimum permitted diameter of a shaft is larger than the maximum allowable diameter of the hole. In this case of this type of the fit, the members are intended to be permanently attached, bearing bushes, keys and cleavage. यहां पर आपको शाफ्ट दिखाया गया है, ये होल दिखाया गया है, ये मिनिमम वन दिखाया गया है, ये मैक्सिमम वन दिखाया गया है। मैक्सिमम मीन लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। मिनिमम वन, अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट। ये टॉलरेंस जोन नेवर मीट अक्रॉस द ईच अदर। आपको मिनिमम वन कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर आपको बताया हुआ है। मैक्सिमम वन कैसे कैलकुलेट करना है यहां पर आपको बताया हुआ है ना। यहां पर आपको ये आपको बताया गया है। ट्रांजिशन फिट, in this type of the fit, the diameter of the largest allowable hole is greater than the smallest shaft, but the smallest hole is smaller than the largest shaft, such that a small positive or negative clearance exists between the shaft and the hole. Coupling rings, spigot in the mating hole, etc. है ना। टॉलरेंस जोन, always overlap.
मैक्सिमम आई, यहां पर आपको मैक्सिमम 1, मैक्सिमम सी कैसे निकलेगा यहां पर आपको बताया हुआ है। अपर लिमिट ऑफ द होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द होल माइनस अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, ये आपको बताया हुआ है। Interchangeability occurs when one part in assembly can be substituted for a similar part which had been made to the same drawing. Interchangeability is possible only when the certain standards are strictly followed. Universal interchangeability means the parts to be assembled are from two different manufacturing processes. Local interchangeability means all the parts to be assembled are made in the same manufacturing unit. This is the meaning of the interchangeability. Interchangeability occurs when one part in the assembly can be substituted for a similar part which has been made for the same drawing. अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट को इंटरचेंज करता है असेंबली में तो उसको इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं, है ना। यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी मींस द पार्ट्स टू बी असेंबल्ड आर फ्रॉम द टू डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसको यूनिवर्सल इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। Local interchangeability means all parts to be assembled are made in the some manufacturing unit, इसको local interchangeability बोलते हैं। Selective assembly, in the selective assembly the parts are graded according to the size and only matched grades of the mating parts are assembled, ये आपको selective assembly है। इसमें parts जो है ग्रेड किया जाते हैं according to the size and only the matched grades of the mating part are assembled, है ना, इसको selective assembly बोलते हैं। This technique is most suitable for the close fit of the component assembled is required. Selective assembly provides complete protection against the non-conforming assembly, reduces the machining cost as close tolerances can be machined. Suppose some parts are manufactured to a tolerance 0.01 mm, then an automatic gauge can separate them into a different groups of the 0.00 mm limit for selective assembly of the individual part. Thus, high quality and the low cost can be achieved. Selective assembly is used in the aircraft, automobile industry, where tolerances are the very narrow and not possible to manufacture at the reasonable cost. Geometric tolerances. It is necessary to specify the geometric feature of a component such as straightness, flatness, roundness, etc. in addition to the linear dimension. Geometric tolerance is concerned with the accuracy of the relationship of one component to another and should be specified separately. Geometric tolerance may be defined as the maximum possible variation of form or position of a feature. Geometric tolerances define the shape of the feature as opposed to its size. There are the three basic types of the geometric tolerances. Form tolerances means the straightness, flatness, roundness, and the cylindricity. Oriental tolerances mean the perpendicularity, parallelism, and angularity. Position tolerances means the position, symmetry, and the concentricity. है ना? तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रेटनेस का मतलब क्या है। स्ट्रेट function of the geometric tolerance to control the straightness of the line on a surface. Tolerance value आपको यहां पे दिखाया जा रहा है, tolerance zone आपको दिखाया जा रहा है, area between the two parallel straight lines in the parallel containing the considered line or axis. Tolerance value is the distance between them. ये आपको tolerance value हो गया straightness के लिए, है ना। straightness के लिए ये आपको tolerance value हो गया, ये आपको स्ट्रेटनेस आपको दिखाया गया है। फ्लैटनेस आपको दिखाया गया है, टू कंट्रोल द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस, ये आपको टॉलरेंस वैल्यू हो गया, ये आपको फ्लैटनेस दिखाया गया है ना। एरिया बिटवीन टू प्लेन्स, टॉलरेंस वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आपको फ्लैटनेस आपको दिखाया गया है, ये आपको फ्लैटनेस आपको यहां पर दिखाया गया है। राउंडनेस, ये आपको राउंडनेस दिखाया गया है, to control the errors of the roundness of a circle in the plane each way it lie. ये टॉलरेंस वैल्यू आपको दिखाया गया है, ये राउंडनेस का, है ना।
राउंडनेस इस तरह होगा, उसका टॉलरेंस वैल्यू आपको यहां पे दिखाया गया। सिलेंडरिसिटी, सिलेंडरिसिटी दो तरह का होगा, आपको ये स्ट्रेटनेस होगा, ये आपको सर्कल होगा, इसका टॉलरेंस वैल्यू यहां पर आपको दिखाया गया है ना। टू कंट्रोल द कॉम्बिनेशन ऑफ द राउंडनेस, स्ट्रेटनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ ए सिलिंड्रिकल सर्फेस, annular space between the two cylinders that are coaxial, tolerance value is the radial distance between them। ये आपको सिलेंडरिसिटी आपको दिखाया गया है, ये आपको सिलेंडरिसिटी आपको दिखाया गया है। पैरेललिज्म, ये आपको पैरेललिज्म दिखाया हुआ है। टू कंट्रोल द पैरेललिज्म ऑफ ए लाइन और सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू सम डेटम, ये आपको टॉलरेंस वैल्यू आपको ये डेटम आपको दिखाया गया। एरिया बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस और स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द डेटम, ये आपको दिखाया गया। स्क्वायरनेस, ये आपको स्क्वायरनेस दिखाया गया। To control the perpendicularity of a line or surface with respect to a datum, area between the two parallel lines or a space between the two parallel lines which are perpendicular to the datum, ये आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया, स्क्वायरनेस आपको दिखाया गया है ना। एंगुलरिटी, to control the inclination of a surface of a line with respect to datum, ये आपको एंगुलरिटी दिखाया गया। एरिया बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस और स्पेस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस व्हिच आर इंक्लाइंड एट ए स्पेसिफाइड एंगल टू द डेटम, ये आपको दिखाया गया। पोजिशनल टॉलरेंसेस, कॉन्सेंट्रिसिटी, दो सर्कल के बीच में कॉन्सेंट्रिक है कि नहीं उससे आपको पता चल रहा है। यहां पर आपको टॉलरेंस वैल्यू कॉन्सेंट्रिक का आपको दिखाया गया। To control the deviation of the position of the center or the axis of the tolerance circle or the cylinder, ये आपको concentricity दिखाया गया। Center or axis of line between the circle or the cylinder, tolerance value is the diameter of such circle or the cylinder, ये आपको concentricity आपको दिखाया गया है ना। तो concentricity, angularity, squareness, parallelism, cylindricity, roundness, flatness, straightness, ये फॉर्म ऑफ टॉलरेंस किस तरह का दिखाया गया है, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। फॉर्म ऑफ द टॉलरेंस आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। A geometric tolerance is prescribed using a feature control firm. It has the three component, the talon symbol, the tolerance value, the datum levels of a reference plane, है ना। ये आपको टॉलरेंस सिंबल, आपको टॉलरेंस वैल्यू यहां पर आपको दिखाया जाता है और ये डेटम इससे आपको डिनोट किया जाता है। दिस इज द मटेरियल कंडीशन इफ एप्लीकेबल, है ना। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, the condition in which a feature contains the maximum amount of the material within the stated limit, minimum hole diameter, maximum shaft diameter, ये आपको दिखाया गया है। स्ट्रेटनेस, स्ट्रेटनेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। This cylinder must be straight within the 0.03 mm, है ना। ये टॉलरेंस जोन आपको 0.03 आपको यहाँ पर दिखाया गया। What it means, straightness। Least material control, the condition in which a feature contains the least amount of the material within the stated limit, maximum hole diameter, minimum shaft diameter, ये आपको दिखाया गया। Regardless of the feature size, this is the default condition for all geometric tolerances, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। Roundness, roundness आपको दिखाया गया है ना। ये आपको टॉलरेंस वैल्यू दिखाया गया, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया, ये आपको राउंडनेस आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। स्क्वायरनेस आपको यहां पे दिखाया जा रहा है और ये स्क्वायरनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टॉलरेंस जोन है और ये आपको मटेरियल कंडीशन है। पैरेललिज्म, this feature must be parallel to the datum B within a 0.007 at the mmc is measured along the diameter, ये आपको मटेरियल कंडीशन, ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल ये आपको दिखाया गया है। टॉलरेंस आपको ये दिखाया गया, डेटम से रेफरेंस ये आपको दिखाया गया, मटेरियल कंडीशन ये आपको दिखाया गया, पैरेललिज्म आपको दिखाया गया है।
ये पैरेललिज्म आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। कंसेंट्रिसिटी, ये आपको कंसेंट्रिसिटी ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। दोनों कंसेंट्रिक है कि नहीं है ये आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। ये टॉलरेंस जोन दिया जा रहा है, ये आपको मटेरियल कंडीशन दिखाया जा रहा है। The cylinder, the right cylinder must be concentric within the 0.07 with the datum is measured on the diameter. ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है 0.07 टॉलरेंस जोन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखा जा रहा है ना। तो ये आपको टॉलरेंस आपको दिखाया गया। आज जो है यहीं तक जो है रहने देते हैं और फिर कल इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। फिर से दोबारा मैं जो है आपको यहाँ पे रिवाइज कर दूंगा कि सिस्टम लिमिट फिट टॉलरेंसेस ये आपको क्या है। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। $41 शेखर जी इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट, राखी जी 37 इज प्रेजेंट। मैं फिर से एक बार अटेंडेंस बोल देता हूं। राखी जी 37 इज प्रेजेंट, राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, 41 शेखर जी इज प्रेजेंट। तो आज जो बात कर रहे थे लिमिट्स का, फिट्स का और टॉलरेंसेस का। लिमिट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है, फिट्स क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि एग्जैक्ट साइज जो है इम्पॉसिबल टू अचीव। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इंडस्ट्री में जब बनाते हैं तो एग्जैक्ट साइज अगर 50 mm का बनाने के बोलिए तो नहीं बनेगा। किसी भी मशीन पे वो आप एग्जैक्ट साइज आप नहीं बना सकते हैं। तो एग्जैक्ट साइज इज इम्पॉसिबल। ये टॉलरेंस आपको आपको देना पड़ता है, प्लस माइनस आपको देना पड़ता है। +40 का आप बनाने के लिए, डायमीटर बनाने के लिए बोलिए, किसी मशीन में नहीं बनेगा। तो ये टॉलरेंस आपको देना पड़ता है। एग्जैक्ट साइज इज नॉट पॉसिबल, है ना। दूसरा, बाउंड्री स्टैब्लिश किया जाता है, अपर लिमिट और द लोअर लिमिट within the deviation from the perfect form is allowed but still design until fulfilled। ये बाउंड्री एक डिसाइड किया जाता है, अपर लिमिट डिसाइड किया जाता है, लोअर लिमिट डिसाइड किया जाता है, वो आपको डिसाइड किया जाता है। इनेबल इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ड्यूरिंग द असेंबली। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट ड्यूरिंग द असेंबली, ये आपको यूज किया जाता है। आप एक पार्ट को, इंटरचेंजेबल का मतलब है दूसरा पार्ट एक पार्ट के लिए यूज होगा, तो ये आपको लिमिट्स फिट्स इसलिए यूज किया जाता है ना। डिफिनेशन ऑफ द लिमिट,
the maximum and minimum permissible size within which the actual size of the component lies are called limits. The maximum and the minimum permissible size within which the actual size of the component lies are called the limits. Tolerance का मतलब है it is impossible to make anything of the exact size, therefore it is essential to allow a definite tolerance or permissible variation on the every specified dimension. है ना, ये टॉलरेंस का मतलब हो गया. एग्जैक्ट साइज का बनेगा नहीं तो कुछ जो है वेरिएशन दे दिया जाता है स्पेसिफाइड डायमेंशन पे, उसी को टॉलरेंसेस बोलते हैं. व्हाई टॉलरेंसेस आर स्पेसिफाइड वेरिएशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना. प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल आपको वेरी करता है. बीइंग मशीन इंट्रोड्यूस एरर्स, द प्रोडक्शन मशीन्स देमसेल्फ मे हैव सम इनहेरेंट इनएक्यूरेसी, आपको इनएक्यूरेसी रहता है. इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑपरेटर टू मेक द परफेक्ट सेटिंग. While setting of the tools and workpiece on the machine, some errors are likely to creep in. ये आपको टॉलरेंस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है. प्लस डायमीटर 40 बनाना है, प्लस 0.05 माइनस 0.05, ये आपको टॉलरेंस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना. यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इसी को. Considered a dimension shown in the figure when trying to achieve a diameter of the 40 mm basic size or the nominal diameter, a variation of the 0.05 mm on either side may result. And if the shaft is satisfactory, if its diameter lies between the 40.05 and the 39.95, देखिए यहां पर कैलकुलेट करके आपको 39.95 और 40.05 आ रहा है. The dimension of the 40.05 mm is known as the upper limit and dimension of the 39.95 is known as the lower limit of the site. Tolerance in the above example is the 0.10 mm. है ना. Tolerance is always a positive quantitative number. ये आपको tolerance है, positive quantitative number. यूनिलैटरल टॉलरेंस, जब बेसिक साइज से एक साइड में आपको टॉलरेंस दिया जाता है तो यूनिलैटरल टॉलरेंस इसको बोलते हैं, है ना. टॉलरेंस दो तरह का होता है, यूनिलैटरल हो सकता है, बायलैटरल हो सकता है. व्हेन द टू लिमिट डायमेंशन आर ओनली वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज आइदर अबव और बिलो, द टॉलरेंस इज सेड टू बी यूनिलैटरल. या तो दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा तो इसको यूनिलैटरल बोलते हैं, है ना. बेसिक साइज आपको दिया हुआ है 25 mm, अपर लिमिट 25.18 mm, लोअर लिमिट 25.10 mm, टॉलरेंस हो गया 0.08 mm, है ना. जब आपका लिमिट डायमेंशन ओनली वन साइड ऑफ द नॉमिनल साइज होगा तो इसको आपको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं. फॉर यूनिलैटरल टॉलरेंस एक केस में अकर व्हेन वन ऑफ द लिमिट्स कोइंसाइड विद द बेसिक साइज, है ना. तो उसी तरह प्लस 525 माइनस 0.10 माइनस 0.20, बेसिक साइज 25.00, अपर लिमिट 24.90, लोअर लिमिट 24.80, टॉलरेंस इज 0.10 mm. ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये बेसिक साइज है, इसको, है ना. तो इसको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं. यूनिलैटरल टॉलरेंस जब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा तो उसको यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं, है ना. बायलैटरल टॉलरेंस व्हेन द टू लिमिट डायमेंशन आर above and below of the nominal size on either side of the nominal size, the tolerance is said to be the bilateral. Unilateral tolerance are preferred over the bilateral tolerance because the operator can machine to the upper limit of the shaft or the lower limit of the hole, still having the whole tolerance left, or machining to avoid the rejection of the parts. सर मेरी अटेंडेंस लगा दीजिए, मैं अभी आया हूं. हाँ एक मिनट, दो बच्चे ज्वाइन किए हैं, उनको मैं अटेंडेंस आपको लगा देता हूँ. अभी दो बच्चों को इन कराया मैं. फिर से मैं अटेंडेंस बोल देता हूँ. राहुल जी 32 इज प्रेजेंट.
रौनक कुमार जी 39 is present. आकाश पवार जी 3 is present. हृदेश जी 19 is present. नंदिनी जी 29 is present. राहुल जी 32 is present. ऋषभ नायक जी 54 is present. अभिषेक कुमार दुबे जी 2 is present. चंदन शाह जी 8 is present. हिमांशु जी 17 is present. हिमांशु पुंडीर जी 18 is present. जैनेश चौहान जी 22 is present. राहुल सिंह जी 34 is present. राखी जी 37 is present. है ना? अटेंडेंस में फिर से दोबारा बोल देता हूं। राखी जी 37 इज प्रेजेंट, राहुल सिंह जी 34 इज प्रेजेंट, जैनेश चौहान जी 22 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, राहुल जी 32 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी 29 इज प्रेजेंट, हृदय जी 19 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट एंड रौनक कुमार जी 39 इज प्रेजेंट। है ना? तो ये आपको यूनिट्रल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस यहां पे आपको बेसिक साइज 0 लाइन से आपको दिखाया गया है। यूनिट्रल टॉलरेंस का मतलब है दोनों पॉजिटिव। टॉलरेंस जब यहां पे दिया जाता है तो इसको यूनिट्रल टॉलरेंस बोलते हैं, या फिर दोनों निगेटिव तो इसको यूनिट्रल टॉलरेंस बोलते हैं। बायलेटरल टॉलरेंस का मतलब है एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो उसको बायलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। है ना? तो यहां पे फिगर में आपको यूनिट्रल टॉलरेंस और बायलेटरल टॉलरेंस आपको दिखाया गया है। यूनिट्रल टॉलरेंस जब एक साइड में रहेगा तो आपको उसको यूनिट्रल टॉलरेंस बोलते हैं, और जब दोनों पॉजिटिव और निगेटिव होगा तो उसको बायलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं। है ना? ये टोटल एक्युमुलेशन ऑफ द टॉलरेंस ये यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। ये साइज L1 प्लस L2 प्लस L3 है, ये L हो गया, प्लस ए प्लस सी प्लस ई ये हो गया, माइनस बी माइनस डी माइनस एफ ये आपको हो गया। ये टोटल एक्युमुलेशन आपको दिखाया गया है। If a part compromises of the several steps, each step having some tolerance specified over its length, then the overall tolerance on the complete length will be the sum of the tolerances on the individual length as shown in the figure A. The effect of the accumulation of the tolerance can be minimized by adopting the progressive dimension from a common datum as shown in the figure B. है ना? ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना? तो यहां पर डायमेंशन ए जो निकाला गया है, यहां पर देखिए ए को निकाला गया है 65 प्लस माइनस 0.15 माइनस 40 प्लस माइनस 0.15 है ना, 25 प्लस माइनस 0.03। ए मैक्सिमम हो गया 25.3 एंड ए मिनिमम हो गया 24.7 mm। है ना? यहां पर ये आपको निकाला हुआ है, ए को निकाला हुआ है। आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल है, समझना है। तो बी को यहां पर निकाला गया है, टोटल कितना होगा बी यहां पे जोड़ा गया है 25 प्लस माइनस 0.5, 35 प्लस माइनस 0.8 एंड 20.0.15 ये आपको 80 प्लस माइनस 1 हो गया। बी मैक्सिमम 81.8 mm हो गया, बी मिनिमम 78.2 mm हो गया। ये आपको बी मैक्सिमम और बी मिनिमम आपको दिखाया गया है ना? कंपाउंड टॉलरेंस जब एल का टॉलरेंस जो है वो एच पे डिपेंड करता है, डी पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो उसको कंपाउंड टॉलरेंस बोलते हैं। ए कंपाउंड टॉलरेंस इज वन which is derived by considering the effect of the tolerance on more than one dimension। है ना? तो उसको कंपाउंड टॉलरेंस बोलते हैं। Tolerance on the dimension L is dependent on the tolerance on D, H and theta. The dimension L will be maximum when the base dimension is D plus A, the angle theta plus A, and the vertical dimension is H minus D. The dimension L will be minimum when the base dimension is the D minus B, the angle is theta minus B, and the vertical dimension is H plus C.
है ना, ये आपको दिखाया गया है। लिमिट्स ऑफ द साइज ऑफ द टॉलरेंस का यहां पर डिफिनेशंस आपको दिया हुआ है। लिमिट्स ऑफ द साइज क्या है? The two extreme permissible size of a component between which the actual size should lie, including the maximum and minimum size of the component, उसको limits of size बोलते हैं। Nominal size, it is the size of the component by which it is referred to as a matter of the convenience, उसको nominal size बोलते हैं। Basic size, it is the size of the part in relation to which all limits of the variation are determined, इसको basic size बोलते हैं। Zero line, it is the line with respect to which the position of the tolerance zone or the zone, इसको जीरो लाइन बोलते हैं, है ना। दूसरा डेविएशन का फॉर्मूला आपको डेफिनेशन बताया गया। इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए लिमिट ऑफ द साइज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, ये आपको डेविएशन हो गया। अपर डेविएशन, इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, इट इज डिनोटेड बाय द ES और for the whole and ES for the shaft. Upper deviation उसको बोलते हैं। Lower deviation, it is the algebraic difference between the minimum limit of the size and the corresponding basic size. It is denoted by the EI for a whole and EI for a shaft. Fundamental deviation, it is the deviation either upper or lower deviation which is nearest to the zero line or the either of a hole or a shaft. It fixes the position of the tolerance zone in relation to the zero line. Allowance, it is